Hello friends, welcome you on Competition Doctor. I am GS Atri, competitive English trainer and motivational speaker. As you know that before coming to this video, I want to say you that if you haven't seen my previous videos, so please go back to that videos, and before coming to this one, you should watch that video so that you can understand my my way of teaching, and you can understand the basics of grammar. I started from noun, the type of noun, and then I proceeded towards the pronoun. I discussed and in that video what is the pronoun, and after that I discussed about adjective and various types of adjective. Okay, after that I made some exercises. I tried to break the sentences. In those sentences I tried to break every word. I tried to mention every word, what is the part of speech of every word. Okay, then if you are watching that this video, then I recommend you go back to that videos so that you can understand effectively. Okay, so now I am going to start adverb. Okay, I will tell you what is the adverb, and how we can identify in a sentence an adverb, and what is the identification of an adverb. And after that I will discuss about the various types of adverb, like adverb of time, place, frequency. Okay, like this. So today's video, I am going to start today's video. So come on the topic. Okay, so सबसे पहले है गाइज एडवर्ब. तो सबसे पहले ये देखो कि व्हाट इज एन एडवर्ब. एडवर्ब क्या होती है? व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है. एडवर्ब इज अ वर्ड which qualifies. Adverb is a word which qualifies verb, adjective, adverb, preposition and conjunction. adverb एक ऐसा वर्ड होता है जो कि verb को क्वालिफाई करता है, यानी क्वालिफाई करना माने मतलब उसकी विशेषता बताता है. ठीक है, verb की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है, और एक प्रेपोजिशन और कंजंक्शन की भी विशेषता ये बता सकता है. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पे लिखूंगा, तो उनके थ्रू आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो आपको डेफिनेशन तो पता चल गई है कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि क्वालिफाई कर सकता है, विशेषता बता सकता है किसकी? एक वर्ब की, एक एडजेक्टिव की, खुद एडवर्ब की, एक प्रेपोजिशन की एंड कंजंक्शन की. इन मैनी केसेस, इन मैनी बुक्स यू हैव लर्नड दैट an adverb can qualifies a noun and a pronoun, but it is I don't think it is useful. So we will not discuss about that case here. So we will discuss about that case in the case when I will start this video. I will start this chapter broadly. Okay, as you know that this is going on a foundation class. So in foundation class we will discuss, we will point out the main central things. Okay, so that you can understand, you can enhance your basics knowledge about English. What is the English? Okay, about part of speech of English. So come on the point. एडवर्ब इज ए वर्ड. एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है, ऐसा एक शब्द है जो कि एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, एक एडवर्ब को, एक प्रेपोजिशन को और एक कंजंक्शन को क्वालिफाई कर सकता है. ठीक है, तो यहां पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, सो लेट्स टेक ए एग्जांपल. इफ आई मेंशन हेयर like Mohan talks. Mohan talks. What it means? It means that Mohan talks. मोहन बात करता है. मोहन बात करता है. अब मोहन बात करता है. If I break this sentence, then talks is main verb and Mohan is subject. So talks. What is the task? Talks. What is talks? Talks is a
एक्शन। ओके, मतलब बोलने यानी बात करने का एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है यहाँ पे? बात करने का एक्शन हो रहा है। एंड हु इज परफॉर्मिंग दैट एक्शन? मोहन इज परफॉर्मिंग दैट एक्शन। मोहन इस एक्शन को कर रहा है। तो मोहन करने वाला यानी किसी एक्शन का डूअर कौन होता है? द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एंड पार्ट ऑफ स्पीच नाउन एंड टाइप प्रॉपर। ठीक है गाइज? okay, if I erase this full stop here and I want to enhance, I want to make lengthy this sentence, then if I put here Mohan talks slow, Mohan talks slow, what does it mean? What does it mean? It means that Mohan talks slow, यानी मोहन धीमे बात करता है, मोहन धीमे बात करता है। So guys, you will tell me कि ये जो स्लो वर्ड है, इस स्लो वर्ड ने किसको क्वालिफाई किया है, किसकी विशेषता बताई है? अब बताना मेरे को कि ये जो स्लो वर्ड है ये मोहन को क्वालिफाई करता है या फिर टास्क को क्वालिफाई करता? अब बताओ कि मोहन स्लो है या टास्क स्लो है? मोहन यानी एक मोहन स्लो है या फिर बात करना स्लो है? गाइज यहां से पता चल रहा है कि बात करना स्लो है। ठीक है, चलो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको ये बात बताता हूं कि जो ये स्लो है ना मेरे भाई, ये स्लो एक एडवर्ब भी होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है। ये स्लो क्या होता है? एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। एडवर्ब तो हम देखेंगे एडवर्ब को भी। ओके, अब देखते हैं हम। एक बात बताना, ये स्लो जो एडजेक्टिव कब होता है? मान लिया अगर मैं ये कहूं कि स्लो मोशन, स्लो ट्रेन, स्लो स्पीड, ओके, एंड स्लो रनिंग, तो यहां पे ये जो स्लो है ये क्या बन रहा है? ये नाउन से पहले आके उसकी विशेषता बता रहा है। स्लो ट्रेन, ट्रेन नाउन है तो स्लो मतलब उसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। अब एक बात बता ना, यहां पे स्लो एडजेक्टिव हो सकता है क्या? देखो, एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है कि नाउन से पहले आता है और उसकी विशेषता बताता है। ये इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव प्लेसमेंट ऑफ एन एडजेक्टिव। ठीक है, इसकी प्लेसमेंट होती है। प्लेसमेंट का मतलब इसको कहां कहां पे यूज करते हैं, तो एट्रीब्यूटिकली यूज बोलते हैं इसका। जैसे कि मान लिया मैं ये कहूं कि स्लो ट्रेन, स्लो मैन, स्लो स्पीड, तो यहां पे ये एट्रीब्यूटिकली जो है यूज हुए हैं। अगर एक दूसरा यूज होता है इसका एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव। ठीक है, ये सारी चीजें मैं इसलिए ब्रॉडली तरीके से नहीं बता रहा हूं, आपको लिखकर इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये हम डिस्कस करेंगे जब एडवर्ब या एडजेक्टिव चैप्टर डिटेल से करेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक स्लो, बस थोड़ा सा आप आइडिया ले लो कि यहां पे मैं कहना क्या चाहता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, ये स्लो एडवर्ब भी होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है। अब सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये कब एडवर्ब बनेगा और कब एडजेक्टिव बनेगा? बिल्कुल आसान मेरे भाई, अगर मुझे सिंपल एडजेक्टिव और एडवर्ब की डेफिनेशन भी पता है तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड यहां पे एडजेक्टिव बन रहा है और वही वर्ड कहां पे वो एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, कैसे? अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन से पहले आके उसकी विशेषता बताना, उसके बारे में कुछ कहना, उसको क्वालिफाई करना। लेकिन एडवर्ब का काम क्या होता है? किसी वर्ब की विशेषता बताना। ठीक है, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताना और किसी एडवर्ब की विशेषता बताना। ठीक है, अब इसको ये बताओ मेरे को, मोहन टॉक स्लोली किसकी बात कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? स्लो क्वालिफाई कर रहा है टास्क को। ठीक है ना भी, स्लो क्या है? बोलना स्लो है या मोहन स्लो है? बोलना स्लो है। अगर ये टास्क को अगर क्वालिफाई कर रहा है तो टास्क क्या है? मेन वर्ब, और मेन वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? एडवर्ब। इसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे एडजेक्टिव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एडजेक्टिव तो नाउन से पहले लग के उसकी विशेषता बताते हैं। क्या स्लो के बाद कोई नाउन है क्या जिसकी ये विशेषता बता रहा है? नहीं है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है। या फिर एडजेक्टिव उस केस में होते हैं, अगर मैं कहूं कि सीमा इज ब्यूटीफुल, सीमा इज ब्यूटीफुल, तो इज क्या है यहां पे? मेन वर्ब, और सीमा क्या है? सब्जेक्ट, और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। काम किसका करेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, तो वहां पे एडजेक्टिव है।
वहां पे लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया। अब यहां पे कोई लिंकिंग वर्ब है क्या? टास्क तो लिंकिंग वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब है ये, ठीक है ना, एक्शन हो रहा है, यानी बोलने का एक्शन हो रहा है, तो लिंकिंग वर्ब नहीं है। अब यहां पे स्लो क्या बना? एडवर्ब बना, ठीक है गाइज। तो मेरा बताने का मतलब ये था कि आप आइडेंटिफाई करना सीखो कि कोई वर्ड कहां पे क्या काम कर रहा है। मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं, आई हैव मेंशन्ड यू ऑलरेडी दैट ए वर्ड कैन बी यूज्ड डिफरेंटली, ओके, इट कैन बिकम noun at a point, and on the other point it can become verb, and the another point it can become another part of speech, ठीक है, like adjective. So it depends on the placement of that word and the working and the action and working of that particular word. उस word की working क्या है, वहां पे वो काम क्या कर रहा है, उसी से हमें पता चलेगा कि उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल है क्या। तो यहां पे बताने का मेरा मकसद ये था कि स्लो एडवर्ब है, ये कैसे पता चला? क्योंकि ये टास्क वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। डिक्शनरी में अगर आप देखोगे तो डिक्शनरी में स्लो को एडवर्ब भी दिखाएगा और एडजेक्टिव भी दिखाएगा। अब कहीं तुम पूछने लगो सर आपने तो बोला था ये एडवर्ब है, लेकिन मेरे भाई जब यहां डिक्शनरी में जब ये एडजेक्टिव दिखाएगा तो उसकी प्लेसमेंट डिफरेंट होगी, वो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा, लेकिन यहां पे ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? मेन वर्ब को, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज ऐड कर देता हूं। अगर मैं इसमें एक चीज ऐड करूं कि भाई मोहन टाक्स वेरी स्लो, मोहन टाक्स वेरी स्लो, मोहन बहुत ही स्लो बोलता है, मोहन बहुत ही स्लो बोलता है। अब मेरे भाई ये चीज तो हमने बोला था कि ये चीज स्लो क्या थी? एडवर्ब थी, एडवर्ब थी, स्लो था एडवर्ब। अब ये वेरी क्या है? अब वेरी का पता कैसे चलाओगे कि वेरी क्या है? सिंपल सी बात है, हम ये देखेंगे कि ये वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता यहां पे बता रहा है। देखो मोहन टाक्स हाउ स्लो, मोहन कैसा बोल रहा है? स्लो बोल रहा है। अब ये जो वेरी है ये स्लो की विशेषता बता रहा है या टाक्स की विशेषता बता रहा है? बताओ। मोहन बहुत स्लो बात करता है, मोहन बहुत स्लो बात करता है। तो स्लो यानी बहुत धीमे, बहुत धीमे। देखो यार मैं हिंदी में लिख देता हूं यहां पे एक चीज, बहुत धीमे। मान लिया एक तो आता मोहन धीमे बात करता है, अब एक आ रहा है कि मोहन बहुत धीमे बात कर रहा है। अब इस धीमे की विशेषता बताई कि नहीं बताई बहुत ने? इस बहुत ने किसकी विशेषता बताई? धीमे की विशेषता बताई। इसीलिए यहां पे जो वेरी है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है मेरे भाई? ये वेरी क्वालिफाई कर रहा है स्लो को। और स्लो क्या है? एडवर्ब। और एडवर्ब की विशेषता जो बताए वो कौन हो सकता है? खुद एडवर्ब। यानी एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, वर्ब की, प्रेपोजिशन की और कंजंक्शन को की विशेषता जो है बताता है। तो यहां से मैं समझा कि वेरी क्या है? वेरी भी एक एडवर्ब है। इसकी टाइप क्या है? ये सारी चीजें हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसमें समझेंगे, ठीक है। वेरी है, एक्सट्रीमली है, टू है, एनफ है, मच है, ये जो है किस टाइप के एडवर्ब होते हैं, ये सारे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखने वाली बात क्या थी कि मुझे ये पता चल गया कि भाई किसी वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? किसी वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? एडवर्ब। और एक एडवर्ब खुद एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। अभी तक हमने ये समझा है कि वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। और एडवर्ब का दूसरा काम क्या हो सकता है? ये खुद एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। तो दो चीजें हमने देख ली है। तीसरी चीजें हम देखेंगे कि एक एडवर्ब एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है, ठीक है। एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है। अगर मैं यहां पे इस सेंटेंस को ब्रेक करने की बात कहूं तो लेट्स ट्राई टू ब्रेक दिस सेंटेंस। प्रतीक इज वेरी स्मार्ट, प्रतीक बहुत ही स्मार्ट है। देन यू टेल मी व्हाट इज द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस।
is the main verb in this sentence and it is also called linking verb. Is also called what? Linking verb. Okay, because it links subject and its subject complement. सब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से ये लिंक करती है। ये सारी चीजें हम बहुत बार जो है पढ़ चुके हैं, आपके कान पक चुके होंगे। अब देखने वाली बात क्या है, ये स्मार्ट है क्या? अगर मैं कहूं स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गाय, स्मार्ट स्टूडेंट, ठीक है, स्मार्ट डॉक्टर, स्मार्ट इंजीनियर, तो ये स्मार्ट क्या है? स्मार्ट है जी एडजेक्टिव, ठीक है ना। स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव। तो यहां पे ये स्मार्ट क्या हुआ मेरे भाई? एडजेक्टिव। अब ये बताओ कि ये जो वेरी वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? बताओ, वेरी वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है? स्मार्ट को। भी प्रतीक कितना स्मार्ट है? वेरी स्मार्ट है। यहाँ पे वेरी हो, सो हो, यहाँ पे वेरी हो, एक्सट्रीमली हो, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड क्या कहलाएंगे? एडवर्ब कहलाएंगे। यानी वेरी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। और इसने किसको क्वालिफाई कर दिया? एक एडजेक्टिव को। गाइस बार बार बोल रहा हूं, अभी तक क्या देखा है कि एक एडवर्ब मेन वर्ब यानी वर्ब को क्वालिफाई करता है। एक एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, और एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है। सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सी इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। ओके, तो यहां पे एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, ये क्या है? एक्सट्रीमली क्या है? यहां पे एक्सट्रीमली ने भी ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट को क्वालिफाई किया है। और ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट है क्या? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई, उसकी विशेषता बताने वाले वर्ड को कहते क्या है? हम उसको कहते हैं जी एडवर्ब, ठीक है। तो यहां पे हमने ये सारी बातें देख ली। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। राधिका लेफ्ट रोहित सिंपली बिकॉज ही डिड नॉट रिमेंबर हर बर्थडे। राधिका ने रोहित को इसलिए, केवल इसलिए छोड़ दिया कि उसको, किसको? रोहित को उसका बर्थडे याद नहीं रहा, ठीक है। राधिका ने रोहित को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे उसका बर्थडे याद नहीं रहा, ठीक। तो इसको क्वालिफाई, इसको हम ब्रेक करते हैं। राधिका लेफ्ट रोहित, लेफ्ट क्या है? लीव, लेफ्ट, लेफ्ट मेन वर्ब। लेफ्ट हुम? रोहित। तो रोहित क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या देता है? ऑब्जेक्ट देता है। क्या या किसको का जो उत्तर होता है वो हमें ऑब्जेक्ट देता है। तो ये जो छोड़ने का काम किसने किया है? यानी इस काम का डूअर कौन है? राधिका। तो राधिका क्या हुआ? सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन टाइप प्रॉपर, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं मेरे भाई कि ये बिकॉज होता क्या है। चलो बिकॉज को देखने से पहले ना इन दो वर्ड को छोड़ के जितने वर्ड हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ही क्या है? सब्जेक्ट है। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नोट क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, ठीक है। रिमेंबर क्या है मेरे भाई? रिमेंबर है यहां पे मेन वर्ब। हर क्या है? हिज, हर, हिम, हिज, हर, योर, देयर, इट्स, ये क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। बर्थडे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? इस रिमेंबर वर्ब का ऑब्जेक्ट है बर्थडे। पार्ट ऑफ स्पीच बोलूं तो नाउन टाइप कॉमन, बर्थडे, बर्थडेज, ठीक है। अब बाकी बचे हैं ये दो वर्ड, सिंपली और बिकॉज। देखो आगे चलकर हम ये देखेंगे कि एक क्लोज होता है। क्लोज, क्लोज किसको कहते हैं? एक मेन वर्ब और सब्जेक्ट जो होता है उसके पेयर को, यानी एक क्लोज में एक मेन वर्ब होती है और एक उसका सब्जेक्ट होता है, तो उनका दोनों का जो पेयर हुआ तो वो एक क्लोज बनाता है, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में दो पेयर हैं तो दो क्लोज, अगर तीन पेयर हैं तो तीन क्लोज। यहां पे एक चीज और बताता हूं मैं, ठीक। अगर कोई बोर्ड पर यहां से लेके यहां तक पूरा लिख देता है और आपको ये बोले कि मेरे को ये बताओ कि ये कितने सेंटेंस है, तो कैसे जानोगे कि कितने सेंटेंस है? सिंपली एक तरीका बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। ट्रिक तो क्या है? दिस इज ट्रुथ, कि जहां पे भी फुल स्टॉप हो
उसमें काउंट करो आप कि पूरे के पूरे पूरा पूरा जो पैराग्राफ है उसमें फुल स्टॉप कितनी आई है। जितनी फुल स्टॉप होंगी उतने ही सेंटेंस होंगे। यानी अगर यहां से लेके यहां तक फुल स्टॉप यहां पे लग रही है तो इसका मतलब वहां पे एक सेंटेंस माना जाएगा। ठीक, अगर 2 फुल स्टॉप है तो 2 सेंटेंस, 3 फुल स्टॉप है तो 3 सेंटेंस। तो मेरे भाई ऐसा है, इसको मेरे को ये बताओ कि इसमें कितने सेंटेंस हुए। अब यहां पे राधिका से लेकर के बर्थडे तक फुल स्टॉप कहां लगा है, बर्थडे के बाद। इसका मतलब सेंटेंस तो एक है। एक सेंटेंस में क्लोज जो होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं। आई विल डिस्कस इट, मतलब आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द सेंटेंस, व्हाट इज द फ्रेज एंड व्हाट इज द क्लोज। ठीक है, ब्रॉडली डिस्कस करूंगा मैं इसके बारे में, लेकिन जस्ट अभी आई एम गिविंग यू एन आइडिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, एट प्रेजेंट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। ओके, सो यहां पे मैंने क्या बोला, क्लोज क्या होता है, एक मेन वर्ब और एक सब्जेक्ट का पेयर। सबसे पहले ये देखो मेरे भाई कि मेन वर्ब एक है और सब्जेक्ट एक है, यानी एक क्लोज हो गया ये। ठीक, और ये इसका ऑब्जेक्ट, यानी यहां तक एक क्लोज हुआ। उसके बाद ही सब्जेक्ट है और मेन वर्ब क्या है, रिमेंबर। तो यहां पे क्या हुआ, 2 क्लोज हुए। तो बात ऐसा है कि 2 क्लोज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन का यूज होता है। टू कनेक्ट 2 क्लोजेज, टू कनेक्ट 2 क्लोजेज एक कंजंक्शन इज यूज्ड। ओके, एक कंजंक्शन यूज की जाती है 2 क्लोज को जोड़ने के लिए। तो यहां पे बिकॉज क्या हुई, कंजंक्शन हुई। इस बिकॉज को समझाने के लिए मुझे इतना सारा कुछ आपको समझाना पड़ा, क्लोज के बारे में, सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो देखो यार, मैं ये चाहता हूं कि साथ साथ आपको क्लैरिटी आए चीजों के बारे में। ठीक, ताकि कोई भी चीज आपको रटना ना पड़े बस। ठीक, तो यहां पे आ जाओ, बिकॉज। बिकॉज क्या है, कंजंक्शन है। ठीक, तो कैसे पता चला, क्योंकि बिकॉज इस क्लोज को और इस क्लोज को कनेक्ट कर रही है। ठीक, 2 क्लोज को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन का यूज होता है। अब मेरे भाई ये बताना कि ये जो सिंपली वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है। ये सिंपली वर्ड क्वालिफाई कर रहा है बिकॉज को। किसको, बिकॉज को। राधिका लेफ्ट रोहित सिंपली बिकॉज, केवल इसलिए। सिंपली बिकॉज, केवल इसलिए, यानी राधिका ने रोहित को केवल इसलिए छोड़ दिया कि उसको, यानी रोहित को उसका बर्थडे याद नहीं रहा था। ठीक, तो यहां पे बिकॉज को अगर ये क्वालिफाई कर रहा है सिंपली, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एडवर्ब हुआ। कैसे पहचाना, क्योंकि एक एडवर्ब किसको भी क्वालिफाई कर सकता है, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर सकता है। यहां पे आप सिंपली ना लगा के आप जस्ट भी लगा सकते हो। ठीक, अगर मैं यहां पे सिंपली को हटा देता हूं, मैं यहां पे सिंपली हटा देता हूं और मैं यहां पे इंसर्ट कर देता हूं, सॉरी, मैं यहां पे लगा देता हूं जस्ट। अब थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि जस्ट क्या होती है। जस्ट एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, अभी पढ़ेंगे हम, थोड़ी देर में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। तो यहां पे जस्ट क्या हुआ, जस्ट हुआ जी एडवर्ब। जस्ट क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ठीक है, तो इस जस्ट ने क्या किया मेरे भाई, इस जस्ट ने कंजंक्शन को क्वालिफाई कर दिया। तो हमने अभी तक क्या देखा कि हमने ये देखा कि एक एडवर्ब एक वर्ब को क्वालिफाई कर सकती है। ठीक, एक एडवर्ब एक वर्ब को क्वालिफाई कर सकती है, एक एडवर्ब खुद एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकती है। उसके बाद इस सेंटेंस में हमने देखा कि ये वेरी एडवर्ब ने स्मार्ट एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया। उसके बाद इस सेंटेंस में हमने क्या देखा कि इस जस्ट एडवर्ब ने या सिंपली एडवर्ब ने यहां पे बिकॉज, यानी बिकॉज जो कि कंजंक्शन है, इसको क्वालिफाई कर दिया। तो 3 यूज हो चुके, 3-4। कैसे, तो यहां पे क्या क्या हो चुका है, वर्ब को क्वालिफाई करना हमने सीख लिया, एडवर्ब को क्वालिफाई करना सीख लिया, एडजेक्टिव को और कंजंक्शन को। लास्ट वन इज प्रेपोजिशन। सो इन द लास्ट एंड नोट द लीस्ट सेंटेंस वी विल लुक about how an adverb can qualify a preposition, how an adverb can qualify a preposition। ठीक है, देखो, thief entered the room exactly at 3 o'clock। जो चोर था वो रूम में
घुसा था रूम में, उसने एंट्री की थी कब कब 3 बजे, यानी 3 o'clock पे उसने जो है रूम में वो घुसा था। इसको हम अगर ब्रेक करें तो एंटर, एंटर्ड मेन वर्ब। एंटर करने का एक्शन किया किसने? थीफ ने। थीफ क्या हुआ? सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच बोलूं तो नाउन, टाइप बोलूं तो कॉमन, क्योंकि थीफ थीव्स यानी प्लूरल बन सकते हैं। उसके बाद थीफ एंटर्ड, ठीक, एंटर्ड द रूम। तो यहां पे थीफ एंटर्ड द रूम, तो यहां पे रूम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ जी। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, टाइप कॉमन। उसके बाद एट क्या होती है? एट होती है जी प्रेपोजिशन। हमको पता है एट क्या होती है? ओन, फ्रॉम, विद, एट, अपन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? प्रेपोजिशन होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे प्रेपोजिशन होते हैं, ठीक। उसके बाद ओक्लॉक, ओक्लॉक वर्ड है जी ऑब्जेक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि ओक्लॉक क्या है? नाउन है, टाइप क्या है? कॉमन है, ओक्लॉक। उसके बाद 3 क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव। 3 क्या हुआ? न्यूमरल एडजेक्टिव। एट क्या हुआ? प्रेपोजिशन। एट हुआ प्रेपोजिशन, 3 हुआ न्यूमरल एडजेक्टिव, और ओक्लॉक वर्ड है ऑब्जेक्ट, यानी नाउन है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। अब मेरे को ये बताना कि ये एग्जैक्टली कब है, क्या है ये एग्जैक्टली, किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? ये एट को क्वालिफाई कर रहा है। मतलब कब उसने एंट्री की? चोर कब एंट्री की? एग्जैक्टली एट 3 o'clock, मतलब 3 o'clock पर ही, मतलब पूरा टाइम क्या था? 3 o'clock का टाइम था, तभी उसने वहां पे एंट्री की थी, रूम में एंट्री की थी। तो एग्जैक्टली ये जो है ये एडवर्ब हुआ। कैसे पता चला? क्योंकि इसने प्रेपोजिशन को क्वालिफाई किया है। तो हमने गाइज ये देखा है, ये देखने की कोशिश की है कि एक एडवर्ब एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, खुद एडवर्ब को, एक कंजंक्शन को और एक प्रेपोजिशन को क्वालिफाई कर सकता है, उसकी विशेषता बता सकता है, ठीक। एडजेक्टिव में हमने क्या क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव में हमने यही पढ़ा था कि एन एडजेक्टिव कैन क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव केवल नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन एज कंपेयर टू एडजेक्टिव एन एडवर्ब कैन क्वालिफाइज एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन। ओके गाइज, सो आप इसको नोट करिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब की अलग अलग कितनी टाइप होती है। आई विल डिस्कस हेयर द वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्ब, द मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पे मेन टाइप्स ही हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब की, ताकि हम जो सेंटेंस को ब्रेक करते हैं उनमें जो यूज होती है उनको ही डिस्कस करेंगे। ब्रॉडली तरीके से कब करेंगे? जब एडवर्ब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी फाउंडेशन क्लास है तो हम मेन जो पॉइंट है उनको देखते हैं, ताकि जस्ट आपको एक आइडिया आ जाए। ओके गाइज, तो इसको आप नोट करो, ठीक। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलो भाई, अब एडवर्ब की टाइप्स डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने जान लिया कि एडवर्ब क्या होता है, ठीक है, कैसे उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो अभी उसकी टाइप्स क्या है एडवर्ब की, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे गाइज जो सिंपल टाइप्स ऑफ एडवर्ब है वो डिस्कस करेंगे। जो मेनली जो टाइप है एडवर्ब की, वो 5 टाइप के एडवर्ब होते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो पहली टाइप है वो एडवर्ब की क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। इससे क्या मतलब निकलता है, क्या समझते हो आप? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट? आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट एडवर्ब ऑफ टाइम इज ए वर्ड which indicate the time, okay, and which qualifies a verb, adjective or adverb by indicating the time of the action, ठीक। मान लिया यहां पे एडवर्ब ऑफ टाइम है आफ्टर, सून, अर्ली, अगो, नाउ, यट, टुडे, रिसेंटली, लेटली एटसेट्रा। ये सारे जो वर्ड है वो पहचान होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के। ये पहचान क्या किसके होते हैं? एडवर्ब ऑफ
टाइम के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे एग्जाम्पल से समझाना चाहूं आपको तो समझना जरा, ठीक। आई रिसीव्ड ए फेक कॉल 2 minutes ago. I received a fake call 2 minutes ago. अब बताओ मैंने फेक जो कॉल है वो कब रिसीव की? 2 मिनट पहले। तो ये टाइम बता रही है कि नहीं बता रही, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, आई विल गो टू रोहतक टुमारो। तो मैं रोहतक कब जाऊंगा? टुमारो। तो टुमारो क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, ठीक है। I have got a book from my mentor. I have got a book from my mentor recently. अब मैंने जो बुक प्राप्त की है मेरे मेंटर से, वो कब प्राप्त की है? रिसेंटली, यानी हाल फिलहाल में। तो रिसेंटली क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम के अंडर वो सारे वर्ड आते हैं जो कि आपको टाइम बताते हैं, जो कि आपको टाइम बताने के काम आते हैं। नाउ है, अर्ली है, सून है, टुडे है, रिसेंटली है, लेटली है, ठीक है, यट है। अगर मैं कहूं कि आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी पार्सल यट, मैंने अभी तक कोई भी पार्सल रिसीव नहीं किया है, तो यट यहां पे क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है कि अभी तक मैंने कोई भी पार्सल यट मतलब रिसीव नहीं किया है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब है कि वो वर्ड जो कि हमें टाइम के बारे में बताते हैं, ये वो एडवर्ब होती है जो कि हमें टाइम बताती है। यानी सेंटेंस में जो एडवर्ब टाइम बताने के काम आती है उन एडवर्ब को क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। तो यहां पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है व्हेन। व्हेन क्यों लिखा है? ये जो एडवर्ब टाइम है, जैसे कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सेंटेंस में? व्हाट या हुम का रिप्लाई लेके, ऐसे ही एडवर्ब ऑफ टाइम को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं किसी सेंटेंस में? व्हेन का रिप्लाई लेके। किसका रिप्लाई लेके? व्हेन का रिप्लाई लेके। और व्हेन का रिप्लाई हमें क्या देता है? एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। अच्छा एक एग्जांपल और देखते हैं। आई विल कॉल टू मनोज सून। मैं जल्दी ही मनोज को कॉल करूंगा। आई विल कॉल टू मनोज सून। आई विल कॉल टू मनोज व्हेन, मैं मनोज को कब कॉल करूंगा? सून, यानी जल्दी ही। आई विल कॉल टू मनोज टुमारो, मैं मनोज को कब कॉल करूंगा? टुमारो, ठीक है। सो यहां पे कब यानी व्हेन का रिप्लाई क्या देता है? एडवर्ब ऑफ टाइम देता है, ठीक है। देखो इसमें वर्ड्स बहुत सारे हैं, इनको हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि यही वर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे एटसेट्रा लिखा है, ETC एटसेट्रा, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड है, जैसे जैसे आते रहेंगे ऐसे से हम डिस्कस करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए ये समझो कि ये मोटे मोटे से वर्ड है जो कि अगर कहीं भी सेंटेंस में ये वर्ड हमें दिखे तो हम क्या समझेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक। तो दूसरी टाइप है एडवर्ब की, वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताते होंगे? प्लेस बताते होंगे, जगह बताते होंगे। और जगह को बताने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? व्हाट का, व्हेन का या वेयर का? वेयर का। वेयर डू यू लिव, तुम कहां पे रहते हो? आई लिव इन जींद, मैं जींद में रहता हूं। तो वेयर का रिप्लाई क्या देता है? एडवर्ब देता है। मतलब वेयर का रिप्लाई क्या देता है? हमें स्थान को बताता है, ठीक है, उस जगह के बारे में बताता है। हेयर, देयर, समवेयर, अप, डाउन, अबव, डाउनस्टेयर्स, अपस्टेयर्स, एनीवेयर, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। गो हेयर, गो देयर, कम हेयर, ठीक है। डोंट गो अपस्टेयर्स, ऊपर मत जाओ। डोंट कम डाउनस्टेयर्स, नीचे मत जाओ, ठीक है, नीचे मत आओ, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो प्लेस बताते हैं उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं, ठीक। उनको क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक। योर बुक, आई हैव पुट योर बुक देयर, आई हैव पुट योर बुक देयर, मैंने आपकी बुक वहां पे रखी है। तो देयर ने क्या बताया? जगह के बारे में बताया ना। प्लेस के बारे में बताया कि मैंने बुक कहां पे रखी है। वेयर आई हैव पुट योर बुक,
आई हैव पुट योर बुक, आई हैव पुट योर बुक देयर, तो देयर क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये सारे के सारे वर्ड जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बताता है। द थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर क्या होता है, मैनर मतलब किसी काम को करने का, कैसे किया उसने, ठीक है, किसी काम को कैसे किया, तो वो चीज बताती है एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि आवर इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर्स प्लेड वेल। आवर इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर्स प्लेड वेल, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर जो है अच्छे खेले थे। कैसे खेले थे, अच्छे खेले थे। ठीक है, आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, हमारे जो सोल्जर हैं वो कैसे लड़े थे, बहादुरी से लड़े थे। तो ब्रेवली हो गया, वेल हो गया, ऑनेस्टली हो गया, ठीक है, र्यूडली हो गया, स्वीटली हो गया। ठीक, अगर मैं कहूं कि सीता सिंग्स ए सॉन्ग स्वीटली, सीता जो है गाना बड़ी ही स्वीटली गाती है। अगर मैं कहूं कि मोहन टाक्स र्यूडली, मोहन बड़ी ही र्यूडली जो है बात करता है, बड़े ही र्यूड तरीके से बात करता है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि रवि बिहेव्स नाइसली, रवि जो है नाइस बिहेव करता है। तो मेरे भाई ये र्यूडली हो गया, नाइसली हो गया, स्वीटली हो गया, ब्रेवली हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। यानी किसी काम को करने का ये क्या बताते हैं, मैनर बताते हैं। ऐसे ही जैसे रिप्लाई व्हेन का क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। वेयर का रिप्लाई क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे ही हाउ का रिप्लाई हमें क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ही टॉक्स स्लोली, वो कैसे बात करता है, वो बड़े ही धीमे बात करता है। ही टॉक्स लाउडली, तो लाउडली स्लोली ये क्या हुए, एडवर्ब ऑफ मैनर हुए। ठीक है, उसके बाद है गाइस जो फोर्थ टाइप है एडवर्ब की, वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई काम कितनी बार हुआ है, यानी किसी काम को करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितनी बार हुआ है। तो यहां पे एग्जांपल जैसे सेल्डम है, नेवर है, डेली, ऑलवेज, ट्वाइस, ऑफन, क्लोज, ओकेजनली, ये सारे के सारे क्या बताते हैं भाई, कोई भी एक्शन जो है वो कितनी बार होता है। अगर मैं ये कहूं कि माई फ्रेंड रोहित विजिट्स मी सेल्डम, माई फ्रेंड्स रोहित विजिट्स मी सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, सेल्डम का मतलब क्या होता है, ना के बराबर होता है कभी कभार। ठीक, मतलब ना के बराबर होता है सेल्डम, यानी मेरा जो दोस्त रवि है वो मेरे पास ना के बराबर आता है। ठीक है, मेरे पास ना के बराबर आता है। ऑलवेज, अगर मैं कहूं कि ठीक है, आई कॉल मोहन ऑलवेज, आई कॉल मोहन ऑलवेज। ठीक है, आई ईट राइस ऑलवेज, ठीक है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑलवेज, आई गेट अप ऑलवेज अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहां पे ऑलवेज, डेली, ओकेजनली, ऑफन, ट्वाइस, नेवर, सेल्डम, ये क्या बताते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि कोई काम कितनी बार हुआ है। ठीक, ओके, आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश डेली, मैं इंग्लिश में बोलने की ट्राई डेली करता हूं। तो डेली यानी इंग्लिश में बोलने की ट्राई मैं कितनी बार करता हूं, डेली करता हूं। हाउ ऑफन, कितनी बार करता हूं, डेली करता हूं। तो डेली क्या हुई, फ्रीक्वेंसी हुई उसकी। ठीक है, तो ये हुआ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। हाउ मच का रिप्लाई होते हैं, हाउ मच। डिग्री क्या बताते हैं, डिग्री बोलो या क्वांटिटी बोलो, इसको हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बोल सकते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री बोल सकते हैं। ठीक, तो ये किसी काम के होने की डिग्री बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं कि कोई काम कितनी मात्रा में हुआ है, कोई काम कितनी मात्रा में हुआ है। जैसे पहला एग्जांपल क्या था, पहला एग्जांपल यही था कि मोहन टाक्स स्लोली, उसके बाद मैंने क्या लिखा कि मोहन टाक्स वेरी स्लोली। तो मतलब मोहन कितना स्लोली बात करता है, वेरी स्लोली। ठीक है, एक्सट्रीमली स्लोली। ठीक है, मच हो गया, एक्सट्रीमली हो गया, वेरी हो गया, लिटिल हो गया, एनफ हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये
इंटेंसिटी बढ़ाने के काम आते हैं। ये सारे के सारे किसी चीज की इंटेंसिटी बढ़ाने के काम आते हैं। ठीक है, ओके। एक्सट्रीमली, लिटल, टू, मोर, मच, ये सारे के सारे क्या है गाइज? ये सारे के सारे हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही इज रियली गुड, ही इज रियली गुड, वो कितना अच्छा है? रियली अच्छा है। रियली ने क्या किया? यहाँ पे गुड की विशेषता बता दी। ठीक है, और गुड को क्या, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। भाई कितना अच्छा? बहुत अच्छा है, अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसी वर्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाने के काम आते हैं। उनको क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पे सबके पीछे मैंने एटसेट्रा लिखा हुआ है। एटसेट्रा का मतलब ये बहुत सारे वर्ड है, बहुत सारे वर्ड है। जैसे जैसे आप देखोगे, ठीक है, जैसे जैसे आगे आता रहेगा तो हम करते रहेंगे इनको। ठीक, सो गाइज इनको नोट करिएगा। अब आपको पता चल गया है कि एक्चुअली में आपको एक ना पिक्चर जो है क्लियर हो गई है। किसके बारे में? आपकी पिक्चर क्लियर हो गई है नाउन के बारे में, कितने टाइप के हैं। ठीक, काउंटेबल, अनकाउंटेबल क्या होता है। उसके बाद मैंने प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा बताया आपको, प्रोनाउन का काम क्या होता है एक्चुअली, क्यों इसको हम यूज करते हैं। ठीक, और उसके बाद एडजेक्टिव के बारे में हमने डिस्कस किया। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, अलग अलग टाइप उसकी जो हमने डिस्कस की। एक फॉर्मूला भी बताया मैंने उसको याद करने का, पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर डी स्क्वेयर इज नॉट ई स्क्वेयर। ठीक है, तो I think this is very effective formula. You have learnt it. Okay, so I told you that formula so that you cannot forget. Okay, you cannot forget all types of adjective. So you can remember all types of adjective by the use of that formula. ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। आप इनको नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे हमने एडजेक्टिव में एडजेक्टिव को कंप्लीट होने के बाद, एडजेक्टिव कंप्लीट होने के बाद हमने क्या किया था? हमने उनको सेंटेंस में यूज करके उन सेंटेंस को ब्रेक किया था। अब ऐसे ही हम सेंटेंस लिखेंगे, उन सेंटेंस में आपका नाउन भी आ रहा होगा, आपका प्रोनाउन भी आ रहा होगा, आपका एडजेक्टिव आ रहा होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या सम्मिलित हो गया है? क्या एडअप हो गया है? एडवर्ब। तो एडवर्ब भी उसमें आया हुआ होगा। तो उन चीजों को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, आपको पता चल जाए। देखो ये बातें मैं क्यों करता हूं, ये चीजें मैं क्यों करवा रहा हूं। मैं डायरेक्ट जो है एरर डिटेक्शन पे भी आ सकता हूं, लेकिन गाइज ये चीजें ना इफेक्टिव होती हैं अगर आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है ना, समझ के करनी है। ठीक, अगर आपको कभी इस इंस्टीट्यूशन में कोचिंग ली, कभी वहां पे गए, कभी उस टीचर के पास गए, अगर ऐसे आपको फिरना नहीं है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो फाउंडेशन है, आपके जो बेसिक्स है इंग्लिश के, उनको आपको दुरुस्त करना पड़ेगा, उनको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का कोई भी अंत नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज है तो इसमें सारे के सारे रूल्स होते हैं। ठीक, वैसे तो कहा जाता है कि ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स, कि ग्रामर क्या है? रूल्स का सेटअप है। लेकिन ये नहीं है कि 100% उसमें रूल ही होते हैं, नहीं, कंसेप्ट भी होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि 80 से 90% कंसेप्ट होते हैं और 10 to 15 और 20% जो है क्या होते हैं, उसमें फैक्ट भी होते हैं। ठीक, कि भाई चीज़ मान लिया तो हम कोई कुछ भी बोल दिया ग्रामेरियन ने और वो उस चीज़ों को हमें जो है मानना पड़ेगा। काफ़ी रूल आएंगे ऐसे। ठीक, तो अभी के लिए थोड़ा सा समझ के चलो, अच्छे से वीडियो को देखो भाई, शेयर भी करो, लाइक भी करो, कमेंट करो। अगर किसी को नहीं, कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी सॉल्व की जाएगी। तो फिलहाल के लिए आप इसको नोट करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।